नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी देश बेचने का प्लान कर रही है, तैयारी कर रही है। किसको देश बेचने वाली है बीजेपी? ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हजारों की भीड़ थी और हजारों की भीड़ के सामने राहुल गांधी थे, एज यूजुअल, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। मोदी जी जैसे नहीं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर लगा हो, एक एक लाइन पढ़ के बोलना हो, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो अपना भी नाम भूल जाए, वैसे नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हजारों की भीड़ के सामने थे और हजारों की भीड़ के सामने मोदी का असली प्लान, जिस तरफ कई लोग इशारा करते हैं, मोदी के कई करीबी, जिन्होंने मोदी की जो है मोदी को उंगली पकड़ा करके राजनीति में सफर तय करवाया, मोदी स्टेशन पर जिसकी अटैची उठाने आते थे, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट में लोगों ने बताया है, कई बड़े नेताओं ने भाजपा के, कि जब हम आते थे तो मोदी हमारा बैग उठाने आता था। वो लोग भी इशारा कर चुके हैं कि कहीं तो कमजोर नस दबी है चीन से लेकर अमेरिका तक। तो आज राहुल गांधी ने उस प्लान से पर्दा हटा दिया है। साथ ही मंच पर ही स्लीपर सेल को भी क्लियर इशारा कर दिया है, बिल्कुल साफ साफ इशारा कर दिया है स्लीपर सेल को। लाइए हेमंत जी को कुछ दिखाएं, सुनाएं और चर्चा करें। हेमंत भाई, स्वागत है। जरा खबर देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। खबर लाइए। राहुल बोले, आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही है। ये चाहते हैं कि लोग सवाल न करें, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। आगे, नोबॉडी कैन साइलेंस द वॉइस ऑफ द पीपल। लोगों की आवाज कोई भी बंद नहीं कर सकता है, लोगों के सवाल कोई नहीं रोक सकता है। जरा 3 क्लिप है, तीनों सुनवाएंगे, तब चलेंगे हेमंत भाई पास। हम स्लीपर सेल पर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। पहली क्लिप प्ले करिए। If you look slightly deeply at the difference between the BJP, the RSS, and us, the Congress Party, you will see that they stand for centralization of power and we stand for decentralization of power. ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ അന്തരം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത്. They want compliance from the people of India. They do not want to hear the voice of the people of India. അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ ജനതയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും കേൾപ്പിക്കാനുമല്ല ആർഎസ്എസ് ബിജെപി ആശയങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. अगला, नेक्स्ट, अगला। What is the UDF and the Congress Party going to do once they win the election? This is the question in front of the leaders of the UDF and the Kerala Congress. There is a huge unemployment problem in this state. The UDF and the Congress Party have to provide a vision for Kerala which addresses this unemployment problem. And I am confident that the leadership on this stage has the ability to understand what the people of Kerala want and deliver what the people of Kerala need. For any government to succeed, the leadership needs to be accessible to the people. The leadership has to merge with the people. And I'm confident that the leadership of both the UDF and the Congress Party is going to be humble, is going to merge with the people of Kerala, and is going to truly become an expression of the voice of people of. अगला, तीसरा भी ले आइए, तब एक साथ तीनों को। There is a political battle taking place in Kerala, and then there is a ideological and political battle taking place at the national level. കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായൊരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആശയപരമായൊരു പോരാട്ടവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I've had the honor of being a member of parliament from this state.
ഈ മനോഹര സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ ഒരംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള വലിയ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള, അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. And I tell you with all humility that I have learned a tremendous amount from the people of Kerala. വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, പരിധികളില്ലാത്ത പാഠങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനതയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. Your history, your tradition, your language, your political depth. ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രം, ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരം, ഈ നാടിന്റെ അഗാധമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധം, And most important, your ability to stand together. അതിനേക്കാൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഐക്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഈ ജനതയുടെ കഴിവും ശക്തിയും. Different religions, different cultures, different ideas, all standing together respectfully. മതങ്ങൾ, ജാതികൾ, സംസ്കാരം, ഭാഷ ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മുന്നേറുന്നത് കാണാൻ. And you have shown me how this is done. നിങ്ങളാണ് ലോകത്തെ എന്നെ കാണിച്ചത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. So for me, my relationship with the people of Kerala transformed when I became member of parliament. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം അതിന് വലിയ പരിവർത്തനമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന നിലക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത്. I suffer when I see thousands and thousands of young Keralites going abroad because they cannot get employment in this state. ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു ജോലി കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവര് നാട് വിടേണ്ടി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. Yes, I am filled with pride when I see our nurses working hard outside our country. അതേ സമയം തന്നെ ഈ നാടിന് അഭിമാനമായ നമ്മുടെ മാലാഖമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട നഴ്സുമാർ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് നടത്തുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. And I feel pride when I see what the people of Kerala have achieved in Dubai, in many different cities of the world. ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ നാനാവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ മലയാളി സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെ വലിയ അഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. But we need to free the people of Kerala so they can do whatever they do abroad, they can do it in Kerala itself. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഒരുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അവരിവിടുന്ന് പോകുന്നത് അത് നിർബന്ധിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാവരുത്. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. चलिए, थोड़ा सा बहुत सारे दर्शकों को बोझिल लगा होगा क्योंकि बीच में मतलब इंग्लिश, फिर वो मलयालम में उसका ट्रांसलेशन, फिर इंग्लिश, ये होता है। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, तो इसलिए हम चाहते तो बीच का मलयालम वाला हिस्सा हम बीच से क्रॉप कर करके इकट्ठा कर देते, लेकिन फिर किसके साथ आप अपने देश का, अपने देश की भाषाओं का सम्मान कैसे करोगे जब यही काट करके दिखा दोगे? तो केरल के भी लोग देखेंगे, दो चार लोग, तो लगेगा ना कि हमारे देश में दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार, हिंदी भाषी मीडिया भी केरल को अपना हिस्सा मानती है। यही भाव तो देश में चाहिए। बांटने वाले तो अंग्रेजों के जमाने से आज तक कंटिन्यू हुआ, जोड़ने वाला चाहिए। राहुल उस कोशिश में लगे हुए हैं। हेमंत भाई, अंग्रेजी और मलयालम, दो भाषा मलयालम पल्ले पड़ती नहीं, अंग्रेजी हम लोग समझ पाते हैं, बोलते हैं तो माशाअल्लाह। राहुल ने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, बहुत सारी। आरएसएस, बीजेपी, इनका ये क्या प्लान है जिस प्लान से आज ये सबसे बड़ी चोट है। जब सेठ की बात हो, जब बेचने की बात हो, खरीदने की बात हो, मतलब व्यापार। आज पवन खेड़ा ने भी कहा था कि इनके लिए आस्था ही व्यापार है और व्यापार ही आस्था है। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, राहुल गांधी के आज दो प्रोग्राम थे। एक तो जो नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं स्थानीय निकायों के, उनको और दिलाने का कार्यक्रम था, और एक जो केरला कांग्रेस जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड देती है, वो दो कार्यक्रम थे। तो जो ये पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय निकाय वाले थे, इसमें उन्होंने काफी खुल करके बहुत डिटेल में बात की। और चूंकि तिरुवनंतपुरम जो थरूर वाली कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर चूंकि मेयर इनका बन गया, तो उनको ये जरूरी था कि इनको सजग करें केरल के लोगों को कि होने क्या जा रहा है, क्या पूरे देश में चल रहा है, क्या खेल है। और इसलिए उन्होंने, क्योंकि केरला में देखिए कितना ही कुछ भी हो किसी पार्टी का, लेकिन वहां कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है,
वहां यूं नहीं है कि किसी को पकड़ के आप कहां से, बीजेपी तो कर लेती है उधार का सिंदूर, हर बार कभी किसी को पकड़ लेती है, कभी किसी को, कोई मेट्रो मैन को चुनाव लड़ा दिया, कभी मतलब वो उधार का सिंदूर पकड़ती रहती है इधर उधर से। लेकिन जहां तक लेफ्ट की जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, वहां एक काडर के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है मोटे तौर पर। तो उन्होंने उसी तरीके का एक काडर की स्कूलिंग टाइप की चीज की और कहा कि देखिए हमारा जो पूरे का पूरा जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है वो है विकेंद्रीकरण की, और संविधान संशोधन करके पंचायती राज तक को, जो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, पंचायती राज ला करके पंचायतत्व को सशक्तिकरण किया गया। और इमीडिएटली उन्हें उदाहरण दिया कि किस तरीके से भाजपा और आरएसएस की है केंद्रीयकृत सत्ता की, कि सब कुछ दिल्ली में। और फिर उन्होंने इसमें था नहीं बाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करी, उन्होंने नरेगा का जिक्र किया कि हम गांव के अंदर ग्राम सभा के अंदर फैसला करते थे हमारा कानून कि वहां पर क्या काम होना है, कैसे होना है। इन्होंने उसको भी सारे को ला करके दिल्ली के किसी गांव के अंदर, सुदूर गांव में क्या काम होना है वो भी दिल्ली तय करेगी। तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, और फिर बताया किस तरीके से कि देश को सवाल मुक्त कैसे करना चाहते हैं। सवाल मुक्त के पीछे वो चीज थी जो आपने थंब में भी कही, हकीकत वही है कि किस तरीके से देश के हितों को एक बिजनेसमैन के हाथों बेचना चाह रहे हैं और लोग सवाल ना करें। ये है इनका पूरा खेल, सवाल मुक्त भारत, जवाबदेही मुक्त भारत। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, ये जो सवाल मुक्त वाला कंसेप्ट है इसको हम किसी तरीके से लागू नहीं होने देंगे, और समय समय पर इन चीजों को एक्सपोज जरूर करते रहेंगे। यानी कि करना, वो जो केरला का चुनाव है उसकी टोन सेट करने का काम उन्होंने आज के कार्यक्रम से किया है। विचारधारा का बताया कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, आखिर तक सशक्तिकरण और इनका केंद्रीयकरण। ये चीजें केरल के अंदर बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स जैसे मैंने बताया कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रचार नेशनल लेवल पे कर रही है कि केरला के स्थानीय निकाय चुनाव में ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, उसकी हकीकत क्योंकि मैं तो आपको ध्यान उस टाइम केरल में ही था 15 दिन के लिए। तो वहां की सारी स्थिति, लेकिन जहर बांटने की कोशिश वो पूरे कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने बताया भी था। मैं वहां पर कोट्टाकल नाम के कस्बे में था, वहां पर जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया मैंने आपको बताया था कि वहां भी अनुराग ठाकुर वाला जो फेवरेट नारा है वो वहां पर भी सुनने को मिला, अनुराग ठाकुर वाला, देश के डैश डैश। तो केरला में वो जहर बांटने की कोशिश ये करेंगे लगातार, और कुछ एरियाज के अंदर ये सफल भी हुए छोटे मोटे उसके अंदर। लेकिन ब्रॉडली देखोगे तो उतना वो नहीं ढूंढ पाए, तिरुवनंतपुरम को छोड़ते तो राहुल गांधी ने बेसिकली आज एक तो पार्टीज की कल्चर का अंतर बताया, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, उसको बताया कि जो ये मंच पे लोग बैठे हैं ये इनका दायित्व है कि यहाँ पर रोजगार को किसी भी तरीके से सुनिश्चित करें। फिर जो मनरेगा वाला इशू था उसको उन्होंने पूरा डिटेल में बताया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता को अपने ही पास रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता को बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक ले जाना चाहती है। कांग्रेस और यूडीएफ को इन पूरे मामलों पर सोच समझ के लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों की बात उठानी पड़ेगी, लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि रोजगार के बिना वहां गुजारा नहीं। केरल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है, और इसका जो रोड मैप है वो इसी लीडरशिप को देना पड़ेगा जो मंच के ऊपर बैठे हैं। और जो चुप रहने की संस्कृति, उस पर उन्होंने खास वो कहा कि जहां पर चुप रहने की संस्कृति लाई जाए, समझ लो वहां पर लालच है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रीड है, और वो ग्रीड ये है कि किसी को लुटा दिया जाए, कोई सवाल ना पूछे। तो ये ब्रॉडली उन्होंने सारे का सारा एक उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो किसी बात पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसको कहने का साहस नहीं कर पाते। आज की तारीख में देश में वही माहौल है। लेकिन जो महान राष्ट्र होते हैं वहां पर वो चुप्पी से कभी नहीं बना करते। जब वे अपने विचार खुलकर रखते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तभी देश महान बनता है। ये उनका बड़ा आज इंपॉर्टेंट कोट था उन्होंने, जिस तरीके से वहां पर जो पूरा माहौल तो देश के अंदर ही है कि आज की तारीख में कोई भी आदमी सरकार के किसी काम पर मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचता है। ऑपोजिशन के भी बहुत सारे नेताओं की हालत है कि यार कहीं नाराज ना हो जाए। तो वो जो स्थिति थी उन्होंने पूरे का पूरा बताया। और जो ये अपने प्रत्याशी चुन के आए हैं नगर निगमों में, स्थानीय निकायों में, पंचायतों में, उन सब से सवाल जवाब भी किया। हालांकि वो थोड़ा सा उसमें मलयालम का कंटेंट ज्यादा था, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया दिखाने में। हाँ, तो इसलिए वो दिखाने लायक था, अगर मलयालम में नहीं होता तो बहुत दिखाने लायक था कि देखिए संवाद कैसे नेता करता है। जी जी। तो उसमें बेसिकली क्या था कि लोग मलयालम में सवाल पूछ रहे थे, ट्रांसलेटर बता रहा था, ये उसका जवाब दे रहे थे, और फिर ट्रांसलेटर उस जवाब को ट्रांसलेट कर रहा था।
तो अपने आप में काफी रोचक था। इन बिटवीन एक छोटा सा बच्चा आया उनके पास मंच पे, और उसके साथ भी उन्होंने जैसे वो सेल्फी करी और करी गपशप, और उसको चॉकलेट खिलाई। मोदी जी तो ऑप्टिक उस हिसाब से करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस चीज को रूटीन में, अब किसी भी आपने काफिले में देखा होगा, कल देखा होगा, कल वो अपनी कंस्टिट्यूंसी रायबरेली में जा रहे हैं, दिन भर वहां रहेंगे। तो आजकल वो अगर कोई मान लो हाथ मिलाना चाह रहा है और कुछ है सिक्योरिटी वाले उनको रोक रहे हैं, तो गाड़ी रुकवा के बाकायदा डायरेक्ट जन संवाद की भी कोशिश, जो भाजपा में तो संभव ही नहीं है ना। भाजपा में तो सेकंड और थर्ड लाइन भी अब लोगों से दूर रहने लगे। तो उन सारी चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं केरला के अंदर आज केरल के चुनाव का टोन सेट करने की कोशिश की, और अपने नेताओं को भी होमवर्क दिया कि अगर तुम्हें सत्ता में आना है तो लोगों के बीच से वो कहना पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्ट रखना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, और उनके लिए एक्सेसिबल होना पड़ेगा, सर्वसुलभ होना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई दिल्ली में बैठ के नेतागिरी कर रहा है, कोई राजधानी में बैठ के कर रहा है। वो सारी चीज उन्होंने एक तरीके से एक स्कूलिंग की अपने, जो ये जीत के आए हैं स्थानीय निकायों में, पंचायतों में, वो भी एक तरीके का पार्टी का काडर ही है जो नीचे से बन हाँ के आए हाँ हैं, और टॉप लीडरशिप मंच पे थी कोची में। तो उस सारी चीज को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि केरला के चुनाव का क्या टोन होने वाली है और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना है। और उसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को नंबर 1 पे रखा है, और मनरेगा वाला जो इशू था, जो जी राम जी, और उसको भी उन्होंने खोल करके बताया भाई क्या है क्या नहीं, और इसके लिए हम देश भर में लड़ेंगे। कांग्रेस किस कंसेप्ट से लाई थी, ये राइट बेस्ड गवर्नेंस क्या है, और ये किस तरीके से उस सारी को लोगों से छीनना चाहते हैं। पंचायती राज केरला का बड़ा एक इशू रहा है, उसको भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में है, ये सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में। चलिए, आपने कहा तो बच्चे सेल्फी वाला वो विजुअल भी दिखा देते हैं। ये विजुअल देखिए भैया, दिखा दीजिए। और आप समानांतर आप जोड़ सकते हैं। मोदी जी की रैली होती तो मोदी जी की रैली में मैं बता रहा हूँ, और आप याद करिए रैली। वो देखिए वहां बच्ची बैठी है, स्केच बनाया है उसने, स्केच बनाया है। हेमंत जी देखिए स्केच बनाया है, जा करके स्केच हेमंत जी ले लीजिए, ले लीजिए। और कौन कौन स्केच बना के लाया है उन सबसे ले लीजिए, और आप लोग हमको चिट्ठी आप लोग अपना वो कर दीजिएगा, हम आपको चिट्ठी लिखेंगे। बस वहीं से दूर दूर से रहिए, हम चिट्ठी फिर लिखवा के भिजवा देंगे दिल्ली से। फिर वहां जाएंगे। अब यहाँ पे हम आपको क्या बोले, टेलीप्रॉम्प्टर में आपके लिए कुछ लिखा नहीं है बच्चा, बेटा आपके लिए कुछ टेलीप्रॉम्प्टर में नहीं लिखा है, स्क्रिप्ट राइटर ने मिस कर दिया है। अब हम दिल्ली जाएंगे तो स्क्रिप्ट राइटर से फिर चिट्ठी लिखवाएंगे आपके लिए, और फिर डाकिए से भिजवा देंगे। तो वो दे दीजिए आप लोग, जो आप लोग को बना करके किसी ने भिजवाया होगा मेरा स्केच, तो आप लोग दे दीजिए। फिर जिसने भिजवाया उसी को वापस कर दीजिए आप लोग स्केच, क्योंकि आप लोग को कहा गया होगा स्केच जिसने दिया होगा, कहा होगा कि रैली में जाना तो मोदी जी को दिखाना स्केच, फिर मोदी जी मांगेंगे। तो देखिए मोदी जी मांग रहे हैं, बेटा आप लोग दे दीजिए स्केच। ये मोदी जी की रैली का है। स्केच दे दीजिए, मेरा बनाए हैं आप लोग, बनाए हैं क्या मतलब आप लोग को बना करके दिया गया था, दे दीजिए। यहाँ पर बच्चा है छोटा, चलिए फोटो खिंचा करके दे दिया, न स्केच है, न पेंसिल है, न कलम है। वो पता नहीं क्या जेब वो तलाश रहे हैं राहुल गांधी। ये बहुत सारे वो भक्त चौक ये भी कहेंगे देखो राहुल गांधी जो है नहीं नहीं, ये वो पप्पू। शर्ट, नहीं नहीं, चॉकलेट दे रहे थे, और उनके शर्ट में जेब नहीं थी, तो इसलिए पैंट की जेब में, निक्कर की जेब उसमें। मैंने लाइव हाँ देखा ना उसको, तो लाइव में तो देख रहा था, तो उसकी उसमें। वो चॉकलेट देने के लिए जेब। अब ये देखिए ना, बिना स्क्रिप्ट का काम करते तो यही दिक्कत होती है। स्क्रिप्ट से होता तो बकायदे टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है, पीछे से कोई बोलता बाएं ऊपर शर्ट में जेब है साहब डाल दो, तो वहीं पर जाता जेब। अगर बताना पड़ता है भाई, ये लोग इसीलिए पप्पू इनको कहा जाता है, पता ही नहीं है जेब के बारे में। पहले पता करना चाहिए था। वो उसकी माँ से पूछते कि कौन सी शर्ट पहन के आएगा, कौन से 2 जेब रहेंगे शर्ट में, एक जेब रहेगा, एक रहेगा तो दाहिने रहेगा बाएं रहेगा, सब पता करना चाहिए। खैर, एक फोटो में दिखाता हूँ जरा। ये फोटो देखिए, ये मंच की फोटो है। सारी राहुल की अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ जो और चीजें हैं उनको भी लाना चाहिए चर्चा में। राहुल गांधी से मंच पर कतार थी नेताओं की, सब जो लोकल यूनिट थी सारे नेता मिल रहे थे एक करके, एक एक करके। जो पीछे हैं वो मोदी के, मतलब एक जमाने में उन्होंने बताया था बिच्छू है शिवलिंग पर बैठा, जिसे न चप्पल से मार सकते हैं और न हाथ से हटा सकते हैं। और फिर वो परिवर्तन हुआ, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हुई, उनको भी आकाशवाणी से बताया किसी ने कि नहीं मोदी जी देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं उत्तरोत्तर। तो ये पीछे खड़े हैं, और इस मंच पर सीनियर लीडर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं,
सीडब्ल्यूसी में जाते नहीं है और मोदी के किसी भी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, भले नाक बह रही हो, टिश्यू पेपर लेके चले जाते हैं। सीडब्ल्यूसी के लिए इनके पास फिर टाइम नहीं रहती, अपनी निजी व्यस्तता हो जाती है। तो आज मंच पर थे, केरल का कार्यक्रम था, तो महत्वाकांक्षाएं बहुत है इनकी, मौजूदगी इनकी जरूरी थी, लेकिन कुछ बोला नहीं राहुल ने। राहुल की यही एक कमी भी है, ना बोलना, कुछ बोला नहीं, लेकिन न देखा, न इशारा किया, न हाथ मिलाया, जबकि वहां पर जितने नेता थे सबसे 1 to 1 बात की। मंच पर जितने थे, मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो देखा, जितने मंच पर मौजूद थे उनसे सबसे हाथ मिलाया करके 1 to 1 बात की। जो कतार लगी थी, जिस कतार में लोग एक एक करके जा रहे थे, दोनों साइड से देखा होगा आपने, घिरे हैं, उस कतार में पीछे खड़े थे शशि थरूर और पीछे ही खड़े रह गए। ऐसा नहीं है कि कतार में वो आगे आते तो उनको पीछे कर दिया जाता, धक्का मार दिया जाता। इसको कहते हैं मन का चोर। हकीकत है, मैं यही सवाल, मन का चोर इसी को कहते हैं कि अगर मेरे मन में हेमंत अत्री के प्रति कुछ ऐसा है कि यार ठगना है, कहीं गिरा देना है, कहीं धक्का दे देना है, और कहीं सार्वजनिक मंच पर दोनों इकट्ठा हो गए और 10-15 लोग हैं उस भीड़ में हम दोनों के मिलने के बीच में, तो वो 10-15 एक एक करके मेरे आगे जाते रहेंगे, कदम बढ़ाने में मन का चोर नहीं बढ़ने देता कि कहीं जाएंगे हाथ मिलाने तो ऐसा ना हो कि कह दें कि अरे हमारा भेद जाए कि सामने ही मुंह पे। तो आदमी पीछे रहता है। हेमंत भाई, क्या इससे ज्यादा क्या होगा? यही मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं मनोविज्ञान को हमेशा समझने की कोशिश करता हूं, वही सब विज्ञान की जननी है मनोविज्ञान, सारे नहीं विज्ञान आशीष, की। आशीष भाई देखिए, महत्वाकांक्षा एक चीज होती है, सिद्धांत एक चीज होते हैं, और आपकी दशा और दिशा एक चीज होती है। शशि थरूर ने इस टर्म के अंदर जिस तरीके का व्यवहार किया है, ओवरऑल अपोजिशन पार्टी में रहते हुए मोदी का दूत बन के बिना कांग्रेस पार्टी के कहे अमेरिका के डेलीगेशन को लीड करना, उसके बाद वो है कौन? वो कांग्रेस पार्टी के सांसद है। जब पार्टी नाम नहीं दे रही है तो वो क्यों गए? नंबर एक। उसके बाद मोदी के विशेष दूत बनकर वो रशिया में गए, याद होगा आपको, 5-6 दिन तक वहां पे पुतिन और ये सब उनके साथ। तो फिर विदेश मंत्री क्या करेगा? आप किस हैसियत से गए थे? क्या आपने पार्टी से पूछा था क्या? आप हो कांग्रेस में और काम बीजेपी के लिए कर रहे हो, तो फिर बीजेपी में चले जाइए ना, कहां समस्या है? वो आपको राज्यसभा में एडजस्ट कर देंगे, कैबिनेट में ले लेंगे, हो सकता है मोदी की जगह भी बढ़ा दे, क्योंकि आप पढ़े लिखे इतने विद्वान है। मोदी जी को शिक्षा की दिक्कत आती है, मोदी जी अंग्रेजी नहीं समझ पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, भाषण वहां पे हंसना पड़ता है, इशारों में बात करनी पड़ती है, जप्फी पानी पड़ती है। तो शशि थरूर की तो इतनी जबरदस्त दुर्दांत प्रतिभा है, वो जा सकते हैं वहां पे। उन्होंने ये जो अर्जित जो किया है, ये खुद किया है, किसी और ने नहीं किया उनके लिए। हाँ, तो जो आपकी जो हरकतें हैं, जो आपकी जो महत्वाकांक्षा है, कुछ भी लिख देते हैं आप अखबार में उठा करके, किसी भी चीज, जो संसद में पार्टी विरोध कर रही होती है आप उसकी प्रशंसा कर रहे होते हो अखबार के अंदर। तो आप चले जाओ ना पार्टी छोड़ के, कहां समस्या है भाई? तिरुवनंतपुरम आपके रहते हुए बीजेपी ने जीत लिया ना, कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी को अपने हाल पे छोड़ो, आप निकल जाओ, आप तो मंत्री बनो, कल्याण। तिरुवनंतपुरम बीजेपी ने जीता, इसका मतलब पूरे केरल में कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी फिर आप ही हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और सबसे पहले ट्वीट भी किया इसी आदमी ने, ट्वीट भी किया बाकायदा, बधाई दी और सब, क्योंकि वो बहुत महान एक तरीके के स्टेट्समैन है ना, कि बीजेपी को बधाई देना बहुत जरूरी था, जैसे बीजेपी तो हमेशा कांग्रेस को देती है। तो बेसिकली ये आदमी जल्दबाजी में है और इसको चाहिए सत्ता किसी भी रूप में। तो अगर इतनी ही बात है तो कांग्रेस छोड़ के इमीडिएटली राज्यसभा में एडजस्ट कर देंगे, मोदी जी तो नॉमिनेट भी कर देंगे इतनी दुर्दांत प्रतिभा को। भाई जो आदमी कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का एमपी है, उसको विदेश में भेज रहे हैं अपनी तरफ से, तो आप मतलब समझिए ना, इंपॉर्टेंट आदमी है वो। तो इस तरह का जो दोगला चरित्र है, इससे कांग्रेस पार्टी को भी बचना चाहिए, इस तरह के व्यक्ति को भी बचना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है, उनको पता है इनके बारे में, शशि थरूर के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ कमजोरियां हर आदमी की इनबिल्ट होती है। शशि थरूर कैन बी शोन हिज प्लेस, लेकिन राहुल नहीं करते ये चीज। और कांग्रेस पार्टी में अकेले थोड़ी, कई कलाकार हैं ऐसे ऐसे बहुत। भाई कांग्रेस पार्टी ने विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में जो नाम दिए थे उनको भेजा क्या अपनी तरफ से? फिर नाम मांगे क्यों थे? तो वो तो ब्लैक शिप्स हो ही गए ना एक तरीके से पार्टी के लिए। तो भाई लीडरशिप खड़गे जी नाम दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसके अलावा कोई लोग जा रहे हैं पार्टी से बिना पूछे, देश का नाम लेके, देश कल्याण, इतने जन कल्याणकारी, तो एक बार जाके देखा बीजेपी की टिकट पे, पता लग जाएगा। तो ये है भाई। दूसरा जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है
वो हर एक स्टेट में ही यहाँ भी है। लोकल लीडरशिप की जो आपस में गला काट वाला कार्यक्रम है वो केरला में बहुत गंभीर है। मैंने अभी गया तब भी मैंने देखा वहां हाँ। पर, ठीक है ना, 15 दिन था मैं वहां पे। तो वहां जिस तरह का फीडबैक है, लोग ओपनली ये बात कहते हैं कि साहब पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को कोई हराने वाला नहीं था, खुद कांग्रेस ने हराया आखिरी के 48 घंटे में। और वो क्या कि खबर वहां पर ये चला दी किसी ने नीचे ही नीचे कि अगर कांग्रेस जीती तो वेणुगोपाल सीएम बनेंगे। ये होते ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, बाकी सारा काम ठप फिर कि भाई चलो वेणुगोपाल को सीएम बनाते हैं। तो जीता हुआ इलेक्शन कांग्रेस ने 48 घंटे में गंवा दिए। तो बेसिकली क्या है कि वहां पर केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास ना काडर की समस्या है, ना कार्यक्रम की समस्या है, ना स्कोप की समस्या है। अभी चुनाव में ये चीज क्लियर हुई लोकल बॉडीज के अंदर कि कौन कहां खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी वाज ऑलमोस्ट, जो यूडीएफ है, दे वर ऑलमोस्ट एट 48%, 48.5 समथिंग। तो उस तरीके से ठीक है माहौल। लेकिन फिर वही बात है कि जो यहाँ पर तमाम गुटबाजी और वो सारी चीजें हैं, उनको राहुल कैसे एड्रेस करते हैं वो भी एक देखने की बात होगी। दूसरा, केरल के अंदर गांधी फैमिली का अब डायरेक्ट प्रेस्टेज इन्वॉल्व है। पहले राहुल गांधी यहाँ पर एमपी थे, अब उनकी बहन एमपी है। ऐसे में अगर वो वहां के प्रतिनिधि होते हुए भी अगर सरकार नहीं ला पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत मेजर सेटबैक लगते हैं, ये मान के चलिए। बिल्कुल यही है हकीकत। और केरल का इसलिए भी क्योंकि केरल पर अब हमने भी पहले बहुत ज्यादा नहीं अटैचमेंट होता था, अब अटैचमेंट इसलिए भी 15 दिन रह के आ गए हेमंत जी, 6 दिन में रह के आया तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। कुछ वहां पर दोस्त मित्र मिले, कुछ पत्रकार साथी वहां पर है जिनको हम लाए भी थे जब लोकल बॉडी इलेक्शंस के नतीजे आए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, गुटों में बटे हुए हैं। गुट वहां पर सबसे बड़ी बात है। ये सारी गुटबाजी के पीछे फिर वही बात है, लोग कई बार कहते हैं कि ये एक ही नाम लेते हैं, लगता है कुछ इनका निजी होगा। निजी कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन केसी वेणुगोपाल नाम लेकर के बोलते हैं। केसी वेणुगोपाल अभी कहा है मंजीना ने कि नाम आ गया कि सीएम बना देंगे, बस चुनाव ही पलट गया। इतना ज्यादा इस नाम से दिक्कत है केरला में, केरला से ही आते हैं। इतना दिक्कत है। दरअसल वेणुगोपाल का खेमा है, मैं खेमे बता देता हूँ। रमेश चन्नीथला का खेमा है। रमेश चन्नीथला वो नेता है जो केसी वेणुगोपाल को बढ़ाए थे, और आज रमेश चन्नीथला भी सर कह के पता नहीं अपॉइंटमेंट पाते होंगे कि नहीं। तो रमेश चन्नीथला ही थे जब यूथ कांग्रेस। आशीष भाई, केरला के अंदर क्या कमांड एंड कंट्रोल। देखिए, ये तो केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन केरला के एक एक जिले की कमांड एंड कंट्रोल डायरेक्टली इस आदमी के पास है। स्टेट लीडरशिप केवल कहने की है, वहां इस आदमी से पूछे बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। ध्यान रखिएगा इस बात का। स्टेट लीडरशिप ऐसी है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि अभी एक विधायक जो है जिस पर एक के बाद एक अभिनेत्री ने लगाया आरोप, और तमाम आरोप लगे, पार्टी से निकालने का ड्रामा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो वहां का, अब वहां की भी, जैसे यूपी हरियाणा का हम बात करते हैं, हम केरला की भी अब वैसे ही बात करने की स्थिति में हम हैं अब। ये जो है चन्नीथला सीनियर, चन्नीथला यूथ कांग्रेस के जमाने से, देखिए ओमान चांडी और एके एंटनी, इनका दौर गुजरने के बाद, इनका दौर था, इनके दौर के बाद अब तो रहे नहीं, तो इनके दौर के बाद चन्नीथला बड़ा नाम था। चन्नीथला का जो सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, वेणुगोपाल ने क्या किया, एक वीडी सतीशन है, सतीशन एलओपी है, सतीशन को भी राजनीति में चन्नीथला ने आगे बढ़ाया था। सतीशन चन्नीथला कैंप में थे। गुट बढ़ते कैसे हैं, एक एग्जांपल देता हूं फिर खत्म करें। गुट बढ़ते कैसे, सतीशन चन्नीथला के कैंप में थे, एलओपी बने। अब उनके भीतर ये महत्वाकांक्षा पैदा की गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज की तारीख में महत्वाकांक्षा है। सतीशन में ये महत्वाकांक्षा है कि एलओपी के रूप में तो मैं फाइट किया हूं, यहां न चन्नीथला है न वेणुगोपाल, तो जब मैं फाइट किया हूं तो ताज मेरे सर पे आना चाहिए। बस महत्वाकांक्षा आ गई। अब एक अलग कैंप हो गया सतीशन का। तो सतीशन का एक कैंप है, चन्नीथला का एक कैंप है, वेणुगोपाल का एक कैंप है। सबसे कम वोट वेणुगोपाल के कैंप में है, वोट मतलब जनता के वोट सबसे कम वेणुगोपाल के कैंप में। चन्नीथला के कैंप में भी है। मैं एलएफपी वगैरह गया, वहां पर चन्नीथला को लोग, आप यकीन नहीं करेंगे हेमंत भाई, या हो सकता है भाई मैं उनकी भाव न समझ पाया हूं, इतना वो है, वेणुगोपाल को जानने से कई लोगों ने एलएफपी वगैरह में इनकार कर दिया।
आम जनता की बात कर रहा हूं, जानने से इनकार कर दिया। चेन्नीथला पर का या चेन्नीतला नहीं, चैनीथला घर 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 का नाम है भाई। उनकी स्टैंडिंग देखो ना आप, राजीव गांधी के साथी थे वो। हाँ राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री जब जोंगा लेके जोंगा चलाया करते, तो हाँ उसमें बैठा हाँ कौन करता? अगली हाँ। सीट पे चैनीथाला होते थे। ये उस दौर के हैं। तो लेकिन अब क्या करें, अब ये वेणुगोपाल और ये सब ठीक वक्त है। की मार है, वक्त की मार है। और फिर से आई बहार है वेणुगोपाल की, तो कितने दिन बहार चलती है, तो वो वाला अंतर है। सतीशन को भी लोग जानते हैं, लेकिन एक और बात जो कांग्रेस को समझनी चाहिए, इनके पर कतरने में पता है, जो राहुल डरते हैं, जो आप कहे ना कि राहुल की आदत में नहीं, कि यार यही लोग तो कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इन तीनों नेताओं से ज्यादा अगर केरला में किसी के नाम पर वोट है तो राहुल गांधी के नाम पर वोट है। यस यस। मैं तो घूमा, आप तो फिर भी एक जगह पर कुछ लोग सिमिलर सेंटर में, मैं तो घूमा ना, मैं जहां पूछता था लोग कहते थे राहुल गांधी पसंद करता, हम राहुल गांधी पसंद करता। ये वहां पर मैं टी गार्डन में, मसाला वाले गार्डन में, स्पाइस गार्डन में, सब जगह घूमा। मैं तो 6 दिन रहा सबका। तो ये राहुल को ये समझना चाहिए, चुनाव राहुल गांधी जिताएगा वहां पर, और कार्यकर्ता जिताएगा, ये बीच वाले बिचौलिए नहीं जिताएंगे, ये ध्यान नहीं, रखो। ये निपटाएंगे ना, ये ये निपटाएंगे। निपटाएंगे, ये दोनों का अपना निपटाएंगे। अपना काम है भाई, दोनों का अपना अपना काम। हाँ हाँ। तो इजाजत दीजिए, फिर कार्यक्रम हो गया, क्योंकि बाद में मुख्य बिंदु पे आए, शुरू तो राहुल गांधी को सुन रहे थे, बाद में हम लोग सुनाने लगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।